Hello children, let us continue with evidences of evolution in the chapter Evolution. Last time we discussed paleontological evidences, that is, evidences from the fossil areas. Now today we are going to discuss embryological evidences as well as comparative morphology and anatomy. In your NCERT and in your syllabus, the main stress is on the comparative morphology and anatomy. Embryology, that is the study of embryonic stages of all vertebrates, then Haeckel proposed a law that states ontogeny recapitulates phylogeny. Ontogeny means embryonic development. Phylogeny means evolutionary history. So developmental or embryological stages of organism, they recapitulate their evolutionary history. If we see embryos of all the vertebrates, fish, birds, amphibians, mammals, they look so different from each other. Morphologically अगर हम देखें एक फिश का स्ट्रक्चर एक ह्यूमन के स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है या एक बर्ड का एक ह्यूमन का बिल्कुल अलग है, लेकिन जब हम उनके एम्ब्रियोज देखते हैं then we see so many similarities among these. So here you see that embryo of fish, reptile, bird and human. You see the size of human is very different, quite different from the size of bird or a size of reptile. But अगर हम एम्ब्रियोज के साइज की या शेप की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट दे आर सेम. शेप एंड साइज ऑफ दीज एम्ब्रियोज ऑफ वर्टिब्रेट्स, दे आर सिमिलर. ऑफ कोर्स डिफरेंस बहुत कम है शेप और साइज में, जबकि एडल्ट स्ट्रक्चर में टोटली वो जो है वो डिफरेंट है, फिश और ह्यूमन बींग्स. देन अनदर फीचर यू सी हियर that gill slits are present. Fish, reptile, birds और humans. जबकि fish में ही सिर्फ gills functional है. But they are present in the humans also, embryonic stage of the human, embryonic stage of the bird. So you see the similarities in embryo of all vertebrates. Similarly, notochord is present in all. तो ये तभी तो हम इसको कॉर्डेटा में ये स्ट्रक्चर करते हैं. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ऑल एम्ब्रियोनिक स्टेज. हाउएवर एडल्ट स्टेज में क्या होता है, दीज आर रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द एम्ब्रियोज of all the vertebrates, which shows that they have some common ancestor. Then next we come to the comparative anatomy and morphology. If we see the comparative anatomy and morphology in different organisms which are present day organisms, they show both similarities and differences. और इसी तरह अगर हम कंपेयर करें with the past organism, again we see similarities and differences. So here we use the two terms homology and analogy that we have discussed in the 10th class also. Homologous organs and analogous organs. Homologous means organs present in different organisms which have same structure, development, embryonic development, origin, but they perform different functions. So homology, that is a relationship among the organisms of different groups of organisms. ये बहुत important चीज़ है. Organs in the different organisms, they show similarity in the basic structure, development, origin, but differ in their functions. So, homology of organs of different organisms, they indicate common ancestry, that they have some common ancestors. Now, we have so many examples of homologous organs from the plant groups as well as from the animal groups.
Homology is found in the bones of forelimbs of whales, cheetah, birds, amphibians, humans. तो उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है. तो जैसे हमने किया था 11th क्लास में, अब हमने एनाटॉमी पढ़ ली है उसकी लिम्स की. तो हमने देखते हैं कि ऊपर क्या होता है, हमारी बोन आर्म की अगर बात करें, आर्म मीन्स 4 लिम्स है ना, हाइंड लिम्स मीन्स लेग्स. देयर इज ह्यूमरस, एक बोन होती है, उसके बाद 2 बोन्स, रेडियस, अल्ना, उसके बाद हमारे रिस्ट में कार्पल्स एंड देन मेटाकार्पल्स और फिंगर्स, फ्लेंजेस. तो ये सारी बोन्स हमने ह्यूमंस में पढ़ी थी लास्ट ईयर. तो हियर यू सी, इफ यू सी द फ्लिपर ऑफ सील फॉर स्विमिंग, या फिर आप विंग ऑफ द बर्ड देख रहे हो, या फिर आप पेंगुइन इन का या बैट का स्ट्रक्चर देख रहे हो 4 लिम्स का, या फिर आप किसी और मैमल, हॉर्स है या चीता है, उसके 4 लिम्स देखते हो, या ह्यूमंस के 4 लिम्स देखते हो. तो बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन सबका अलग अलग है. देखो, ह्यूमंस हम उसको वॉकिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करते, हम उसको हैंडलिंग द थिंग्स फॉर द यूज, आर्म्स को यूज़ करते हैं. और ये हॉर्स है अपनी रनिंग वॉकिंग के लिए यूज़ करता है, देन फ्लाइंग के लिए यूज़ करते हैं. बर्ड्स अपने 4 लिम्स, देन पेंगुइन है, बैट है, वो अपने 4 लिम्स का अलग काम लेती हैं, फ्लाइंग. फिर ये जो है फ्लिपर्स ऑफ सील, दैट इज़ यूज फॉर द स्विमिंग. तो सब 4 लिम्स एम्स का काम अलग है, बट बेसिकली यू सी दे हैव द सेम स्ट्रक्चर. सब में ऊपर देयर इज अ सिंगल बोन, जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स है ना. ये हमने 11th में किया, दैट इज अ ह्यूमरस. उसके बाद जैसे ये 2 बोन्स होती हैं, रेडियस, अल्ना, तो चाहे थिन है या कैसे भी हैं, पर यहाँ पे सब में 2 बोन्स हैं. फिर उसी तरह से कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और ये फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर, फ्लेंजेस, दे आर देयर. फिर स्लाइट मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं यहाँ पे, मेम्ब्रेनस शीट है तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, बट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ओरिजिन, दैट इज सेम इन ऑल द वर्टिब्रेट. सच ऑर्गन्स, दे आर नोन एज homologous organs, and homologous organs, they are the result of divergent evolution. This is also important कि कई बार ये CBSE में क्वेश्चन आता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड अनदर इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो होमोलॉजी जो है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मीन्स इज वेयर द सेम स्ट्रक्चर दे डिवेलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन. मतलब डाइवर्ज हो गया, एक पॉइंट से डाइवर्ज हो गई एक स्ट्रक्चर, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में डिवेलप हो गया, डिफरेंट मॉडिफिकेशन हुई ड्यू टू द अडेप्टेशन एंड फॉर डिफरेंट नीड्स. क्योंकि वो डिफरेंट उनके काम हैं, तो डिफरेंट ज़रूरतें हैं, तो उस हिसाब से अडेप्टेशन के हिसाब से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हुई इस सेम स्ट्रक्चर की इन द डिफरेंट डायरेक्शंस में. सिमिलरली अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा, तो दे आर आल्सो होमोलोगस स्ट्रक्चर. ये क्या है, होमोलोगस क्यों है? बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर ही सेम. दिस इज आल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. स्टेम से निकलता है, एक्सिलरी बर्ड से, स्टेम से है. इसी तरह यहाँ पे भी जो ये होते हैं टेंड्रिल्स, वो अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ प्लांट्स में जो हैं टेंड्रिल्स, दे आर मॉडिफाइड लीव्स, और कुछ प्लांट में जो है दे आर मॉडिफाइड स्टेम. दैट आल्सो वी हैव डन इन द 11th क्लास, जब हमने किया था मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम लीफ का स्ट्रक्चर किया था. अब यहाँ पे फंक्शन दोनों का अलग अलग है. दिस थॉर्न्स protect the plant from the grazing animals, and tendrils in the cucurbita that help in climbing a support. But both they are homologous. बेसिक स्ट्रक्चर, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो एनाटॉमी इज जस्ट दिस, द एनाटॉमी ऑफ द स्टेम. सो बेसिकली दे आर सेम. Similarly, analogy just इसके opposite.
It is a relationship among organs of different groups of organisms performing the same function irrespective of structural and anatomical difference. मतलब organs present in different organisms having different structures, different development, origin, but they perform same function. तो उनका सिर्फ function एक है. Analogous organs, they are the result of convergent evolutions. So, different structure, they evolving for the same function. एक तरफ different है structure basically different है, लेकिन एक need के कारण, function के कारण वो converge हो जा रहे हैं, एक जैसा function perform कर रहे हैं. Then there are so many examples from the plant group and the animal group of this analogous structure. Sweet potato and potato. Sweet potato हम बोलते हैं शकरकंदी को, and we see दोनों ही underground होते हैं, दोनों का काम एक है, storage of food, तभी हम दोनों को खाते हैं, they are edible. Tubers of sweet potato and tubers of potato both help in storage of food, but sweet potato is a modified root, whereas potato is a modified stem. हमने ये भी 11th में किया था. क्यों है पोटैटो एक स्टेम? क्योंकि उसमें में आईज जो नज़र आती हैं पोटैटो की, दे आर द नोड्स. तो नोड्स किस में होती है? स्टेम में, तभी उसमें से शूट्स निकलती हैं. और स्वीट पोटैटो जो रूट मॉडिफिकेशन है उसमें क्या हेयर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द रूट्स. सिमिलरली अगर हम एनिमल साइड पे देखें, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड दोज ऑफ द बर्ड्स, तो बर्ड्स के विंग्स और बटरफ्लाई के विंग्स दोनों जो है हेल्प इन द फ्लाइंग, बट एट द स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट. अभी हमने किया बर्ड्स के विंग्स क्या है, दे आर मॉडिफाइड 4 limbs, बट बटरफ्लाई के विंग्स है दे आर जस्ट एक्सटेंशंस ऑफ द स्किन की एक एक्सटेंशंस की तरह होते हैं. आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड दोज ऑफ मैमल्स, दे आर आल्सो analogous organs, and then other examples, flippers of whales or dolphins जो अभी हमने किया, they are the modified 4 limbs, and those of penguins, तो उनमें भी थोड़ी थोड़ी modifications आ जाती हैं, तो they are also the analogous organs. Function that is the same. Analogy is the result of convergent evolution, and anatomical different structures in different groups of organisms evolved towards the same function. Then here you see in the diagrams, human eye and octopus, basically they perform same function. They are the analogous organ. Wings of butterfly and wings of birds, दोनों का structure बिल्कुल अलग, they perform the same function. Sweet potato tuber and potato tuber, they are also the analogous structures. Then homologous जो हमने किया, they are not only present in the organs, they are also present in the, they are also present at the molecular level. Molecular homology refers to the similarities in the biomolecules of different groups of organisms. So अगर हम बायोमोलिक्यूल्स देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, तो हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स इन द न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, sequence इनका, they are similar in apes and humans that show the common ancestry. So even proteins, they are similar in the different animals. फिर हमने बेसिस हमने किया था, जेनेटिक कोड इज आल्सो यूनिवर्सल. तो यहाँ से भी हमें बहुत सारे जो है वो एविडेंस होते हैं टुवर्ड्स अ कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. बायोजोग्राफी मीन्स इज differential geographical distribution of different organisms. Bio means living organisms, they have different geographical distribution. And
This also indicates that common or shared ancestry in that restricted region. So, we get so many evidence from different geographical regions on the earth. तो हम देखते हैं कि organisms में similarities होती हैं different areas में भी. Then theory of natural selection, वो हमने शुरू में भी की थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में, that was proposed by Darwin. तो उसने वॉयज सी की जो उसने यात्रा की थी, ट्रैवलिंग की थी, तो उसने कंक्लूड किया था कुछ फीचर. द एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरियस डिग्रीज, नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो विद द लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ऑर्गेनिज्म में जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म है आपस में ही सिमिलैरिटीज नहीं है, बट अपने पुराने एंसेस्टर्स के साथ भी, पुरानी लाइफ फॉर्म्स के साथ भी सिमिलैरिटीज है. तो इसका मतलब धीरे धीरे देयर वाज ग्रेजुअल एवोल्यूशन एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर वाज एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स आल्सो. तो हर पॉपुलेशन में क्या होता है, देर आर सो मेनी वेरिएशन. पॉपुलेशन मीन्स एक स्पीसीज की पॉपुलेशन. अगर हम सिर्फ मैंगो प्लांट की बात करते हैं, देर आर सो मेनी वेरिएशन. कोई कैसे होते हैं कैसे होते हैं. ह्यूमन की बात करते हैं, देर आर सो मेनी वेरिएशन. इंडिविजुअल्स और कुछ वेरिएशन जो होती हैं, दे आर बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल, सम आर नॉट. Individuals with those characteristics which help them to survive better in the natural condition and they would overcome the other. वो क्या है, dominant हो जाती हैं, और दूसरी जो है वो कम हो जाती हैं, उनका नंबर ज़्यादा हो जाता है. जो लेस अडेप्टेड हैं वो कम रह जाती हैं, बेटर अडेप्टेड ज़्यादा हो जाती हैं. यानी कि नेचर सेलेक्ट्स द अडेप्टेशन और नेचर सेलेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन सा रहना चाहिए ऑर्गेनिज्म में, कौन सा नहीं. इसीलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी कहते हैं. फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू डार्विन, दैट मीन्स reproductive fitness. Fit individual survive and unfit will die. Stronger individual will survive, survival of the fittest. Fit individual will survive, weaker one will die. So they are selected by the nature. So that is the Darwin's theory of natural selection. Branching descent and natural selection, ये दो मेन कंसेप्ट थे डार्विन थ्योरी के. एंड डार्विन कंसिडर्ड नेचुरल सिलेक्शन एज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. तो उसी ने इसी को वो किया कि एवोल्यूशन किसके कारण है, नेचुरल सिलेक्शन के.